So 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 during the quantization and encoding process, we have seen that is we encounter a different kind of error, and that is called quantization, and that is because of quantization process. Okay, so that you see that is we have already discussed what is this quantization error. That if, for example, you see that is if this is the actual magnitude, we are assigning this value. This is I think the star diagram. It is a different diagram, so doesn't matter. So, and we are assigning a value of this. So this much error we are encountering. For example, if this is the value, we are assigning this one. So this is your error EQ we are assigning. Okay, EQ. ठीक है ना? So this quantization error EQ is actually a difference between signal M T and minus MT quantized value, your sample value, right? So this here you can find out the quantization. Now you see, and that is this is one step size, right? So this we say, let us say this is called a step. Okay, so this S is called step size, right? And the number of quantization level, let us say 1, 2, 3, 4. Okay, so the M is the number of quantization level. Right? Okay. And here from, if we have taken 0, this is the maximum voltage V. So the V is the maximum voltage, right? Or highest voltage level हो गया आपका, ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं maximum voltage swing. Because the voltage can vary from this to this. If it is going negative, then we cannot see. We are not showing the negative one, but negative can go as well. Right? So see that is from here, this step size will obviously will be equal to your V by M. ठीक है ना? ठीक है जी. Are you getting my points? समझ में आ रहा है? तुम सुन बैठे? Yes, sir. Our number of if you have decided a step size, the number of quantization level you can write V by S. Okay. So if you reduce the step size, number of quantization level will increase. Okay. Keeping the V constants. Now see, so what is the maximum? So quantization level that we have discussed, what is the maximum quantization level? Error.
EQ मैक्स, राइट। ये कितना होगा बताओ, मैक्सिमम कंडीशन कितना होगा, इस डायग्राम को देख के बताओ। हाँ जी बोलो कितना हो गया। ये हमारे पास एक मैक्सिमम लेवल है, राइट, ओके, एंड दिस क्वांटाइजेशन स्टेप साइज इज एस, राइट। और हम क्या कर रहे हैं कि दिस इज आई क्वांटाइजेशन लेवल, दिस इज योर क्वांटाइजेशन लेवल, राइट, L. So what does it mean? Any value falling from this to this will be given the quantization level Q. Okay. So the maximum error कितना हो सकता है? Plus minus S by 2. हाँ? S by 2. Yes. Right. It will be plus minus S by 2. क्योंकि अगर जो कोई वैल्यू लेटर से यहाँ पे लाई कर रही है, इसको तुमने दिया है लेवल यहाँ के ऊपर, एक्सट्रीम कंडीशन देखो तो कितना एरर है, ये एक्चुअल वैल्यू है और तुमने असाइन इसको किया ये वाली वैल्यू, तो एरर कितना आ गया S by 2, राइट। और कोई वैल्यू आपको यहाँ के ऊपर है बिल्कुल एक्सट्रीम के ऊपर, तो उसको भी तुमने ये वैल्यू असाइन किया है, तो ये फिर एरर आपका इतना आएगा, तो एक में प्लस एरर, सो मैक्सिमम एरर यू कैन हैव ओनली स्टेप बाय 2, ठीक है ना। सो now what's going on is that error is not desirable, ठीक है ना, error तो कहीं से desirable नहीं है ना। so if you want to reduce the step वो quantization error, तो क्या करना होगा, so to minimize EQ आपको क्या होना है, S should be small, राइट। जब S को स्मॉल करोगे ये कम हो जाएगा आपका एरर, और तुम S को अगर जो तुम 0 कर दो तो तुम्हारा कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, क्वांटाइजेशन प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा, तो मिनिमम यू कांट कीप 0, बट इफ यू आर कीपिंग S स्मॉल टू रिड्यूस द क्वांटाइजेशन एरर, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, सो इफ S इज स्मॉल, ठीक है ना, देन M टेंड्स टू बी लार्ज, राइट। ये M है, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। So if S is small, then M tends to become large, right? अगर S को 0 कर दो तो M कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ओके। और अगर जो S को इसका मतलब क्या होगा, when S is large, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, what is M? M क्या चाहिए जी, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन नंबर लेवल, क्वांटाइजेशन लेवल। तो अगर जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस के बाद हम क्या कर रहे थे, इनकोडिंग कर रहे थे, तो इफ एज इज M, सो नंबर ऑफ इनकोडिंग बिट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ bits required for encoding n is equal कितना होगा बताओ, अगर m is the quantization level तो n कितना होगा, 2 to the power 2d के पावर m. m, are you sure? हाँ जी, अगर जो हमारे पास क्वांटाइजेशन लेवल 8 है, इफ m is equal to 8, तो n कितना होगा, 3। ये कौन सी फार्मूला निकला है, 2 का पावर m है, नो सर, क्या है बताओ, सर 2 की पावर n को सर m के बराबर कर देंगे, उससे m निकल जाएगी वैल्यू। कैसे निकलेगी बताओ, क्या फार्मूला है देखो, m is equal to 2 का पावर n होता है, ये फार्मूला हुआ, ठीक है ना। यस हमें n निकाला, n कैसे निकालोगे, सर लॉग ले लेंगे। फिर बोलो ना इसको देखो, log m बेस 2, ठीक है ना। हाँ जी, मैथमेटिक्स पढ़ने कोई फर्क नहीं होगा तुम लोगों में, जो है वही अनपढ़ की तरह से सिविल साइंस वालों सोर्स साइंस बोलते रहोगे तुम लोग।
So if you know that is m is equal to 2 का पावर n, ये फॉर्मूला है, n is the number of bits. ओके, हमने पुराने वाले केस में क्या किया था कि हमारा जो है क्वांटाइजेशन लेवल हमने कितना ले रखा है, 4 ले रखा है, तो n की वैल्यू 2 थी, ठीक है ना, तुमको याद है ना, पिछला वाला किया था हमने कोडिंग. सो n इज इक्वल टू log m बाई log एक बेस 2 है, ठीक है ना, कैलकुलेट करना बेस 10 पे कन्वर्ट कर सकते हो. So what happen is that, what does it mean कि if m is large, so n will become large, ठीक है ना. So this implies that is n will become large. और जब n की वैल्यू लार्ज हो जाएगी तो तुम्हारा क्या इम्पैक्ट होगा, इसका बताओ. 0 हो जाएगा सर. क्या चीज 0 हो जाएगा जी? नॉइज. क्या चीज 0 हो जाएगा? एरर. एरर कहां से 0 हो गया बेवकूफ? तुमने s को स्मॉल किया है, एरर तो s पे डिपेंड कर रहा है कि n पे डिपेंड कर रहा है? सर m के लिए बोल रहा था. किया ना कि s स्मॉल होगा तो क्या होगा, एरर रिड्यूस हो गया, लेकिन s स्मॉल होगा तो m लार्ज हो गया, m लार्ज होगा तो n लार्ज हो गया, और n लार्ज होने का क्या नुकसान है? नंबर ऑफ बिट ज्यादा चाहिए, मतलब नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा जाएगा, तो साइज ऑफ द सिग्नल विल बी लार्ज, ठीक है ना. अगर तुम्हारा मान लो कि 5 सैंपल हैं और एक सैंपल के लिए तुमने 2 बिट लगा रहे हो तो 10 बिट हो जाएगा, और उसी के लिए तुम जो है 4 बिट लगाओगे तो 40 बिट हो गया, राइट. सो द साइज इज स्मॉल, साइज लार्ज हो जाएगा, और साइज लार्ज हो जाएगा तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इसका रिटर्न ये होगा कि लार्ज बैंडविड्थ विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है ना. लार्ज बैंडविड्थ विल बी रिक्वायर्ड, और लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड का मतलब ये होगा, और बैंडविड्थ लार्ज नहीं है तो स्पीड स्लो हो जाएगी, तो स्पीड विल बिकम स्लो, ठीक है ना. तो इतने सारे नुकसान हैं तुम्हारा एस को इस्तेमाल करने का, ठीक है. व्हाई इट इज सो सिंपली दैट इज वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ए लार्ज वैल्यू ऑफ n. ओके ओके, सो बट लार्ज वैल्यू ऑफ n नहीं होगा तो फिर आपका जो है एरर भी ज्यादा होगा. सो नाउ दिस इज ए बिग ट्रेड ऑफ बिटवीन द क्वांटाइजेशन एरर एंड द साइज ऑफ द फाइल और अल्टीमेटली कहते स्पीड ऑफ द नेटवर्क. ओके, सो दैट मीन्स यू हैव टू मेक ए ट्रेड ऑफ, और स्पीड ऑफ नेटवर्क, इन सबका नेट रिजल्ट क्या बनेगा, इन सबका नेट नुकसान क्या है बताओ, इस सबका नेट नुकसान क्या है? कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है ना. पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तुम्हें. हाई बैंडविड्थ का चाहिए अगर जो सिस्टम, तो यू हैव टू पे मोर, ठीक है ना. ब्रॉडबैंड ये सब जो तुम तो आज चूंकि यूज करते हो, सो ये नुकसान बस ये है कि इट कॉस्ट विल बी मोर. ओके, बट हमने पहले कहा था जब कॉस्ट आप ज्यादा देंगे तो क्वांटाइजेशन एरर कम हो गया, और जब क्वांटाइजेशन एरर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना. सो एक बहुत नेट आपका जो है आपने सिनेरियो आया, बहुत सिंपल वे बताया कि अगर क्वालिटी आपको चाहिए तो यू हैव टू पे मोर सिंपली, राइट. सो दैट इज अ ट्रेड ऑफ. अगर जो आप जो है पैसा कम खर्च करना चाहते हैं तो लो क्वालिटी का सिस्टम अफोर्ड कीजिए. इफ यू वांट टू हैव ए हाई क्वालिटी, और ये बात बहुत पहले कर चुके हैं, थंब रूल है कि अगर जो क्वालिटी चाहिए तो यू हैव टू पे फॉर दैट. फ्री में कोई चीज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. सो दैट इज ऑल आई थिंक वी हैव डिस्कस this. We have so that is how this you have a trade off. But engineer का काम क्या है, what is the job of a design engineers, ठीक है ना. ये तो एक रूल हो गया, ठीक है ना. अब इंजीनियर काम क्या है बताओ. सर क्लोज टू आइडियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करना लो कॉस्ट. नहीं बेटा, बहुत सिंपल आइडियल कि हाँ वो तो है, मतलब ये तो आपने देख लिया कि अच्छा सिस्टम बनाना है फॉर ए गुड क्वालिटी सिस्टम, दैट मीन्स फॉर ए लो क्वांटाइजेशन एरर द कॉस्ट विल बी हाई. लेकिन हमारा काम क्या है कि आपको कम पैसे में अच्छी क्वालिटी देना है, बस सिंपल बात है. एक वर्ड है आपके इंजीनियर्स का कि कम पैसे में अच्छी क्वालिटी देना है.
सो व्हाई द रिसर्चेज आर गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, हर साल आपको जो डेवलपमेंट हो रहा है सिस्टम के अंदर, क्यों इतने इंजीनियर की डिमांड बढ़ती जा रही है? बिकॉज कंपटीशन कहाँ पे आ गया आपका? कॉस्ट के ऊपर. तो व्हाट इज योर जॉब? द जॉब इज दैट इज टू डिजाइन ए सिस्टम एट लो कॉस्ट दैट गिव्स बेटर परफॉर्मेंस. ठीक है ना? तो ये है आपका काम. अब उसके लिए आपको सर्किट नई नई डेवलप करना पड़ेगा. ठीक है. सो मैं इसके बाद थोड़ा सा निकलूंगा, मुझे आई हैव सम अदर मीटिंग. ओके, सो आई विल फिनिश ओवर हियर. ठीक है, और बाकी चीजें हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. बट आपको जो गोल आपको पता चल गया गोल क्या हमारा है. ठीक है ना? आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर. सो वी विल हैव टू गो फॉर सम अदर काइंड ऑफ this modulation techniques and that we'll see later on. ठीक है. Twenty-four students